بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والے جو خطوط ہیں مکاتیب کے نام سے مکاتیب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ لیکچر میں مکاتیب کا حصہ اول پڑھا تھا، جس میں ہم نے غالب کا پہلا خط پڑھا تھا جو میر مہدی مجروح کے نام تھا۔ آج کے اس لیکچر کے حصہ دوم میں یعنی کہ دوسرے حصے میں ہم غالب کا لکھا گیا ایک دوسرا خط جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، غالب کا پیش نظر آپ کا جو خط ہے وہ علاء الدین علائی کے نام ہے۔ یہ غالب کا ہمارے نصاب میں شامل دوسرا خط ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ علاء الدین علائی جو ہیں وہ مرزا غالب کی بہت ایک عزیز ترین شاگرد بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ علاء الدین علائی جو ہیں وہ غالب کی جو زوجہ یعنی کہ بیوی ہیں ان کے تایا زاد بھی تھے، یعنی کہ ان کے تایا کے بیٹے بھی تھے۔ تو یوں ایک رشتے کے حوالے سے بھی ان سے ایک انسیت اور محبت تھی، اور اس کے علاوہ ان کے ایک عزیز ترین شاگرد بھی تھے۔ ان کو خط لکھتے ہیں اور خط کا انداز کیسے شروع کرتے ہیں؟ جانے غالب، غالب کی جان، ٹھیک ہے۔ تم تو سمر نورس ہو اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی ہے، اور میں ہوا خواہ و سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے۔ رہی دید و دید اس کی دو صورتیں ہیں، تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو آؤں، تو مجبور میں معذور، خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ سنو، عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم آب و گل، حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک، ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا۔ 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا، پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا۔ جب دیکھا کہ یہ قیدی گریزپا ہے، وہ بیڑیاں اور بڑھا دی، پاؤں بیڑی سے فگار، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار، مشقت مکرری اور مشکل ہو گئی، طاقت یک قلم زائل ہوئی۔ 1 سال بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ مائے 2 ہتھکڑیوں کے بھاگا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑایا، اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا۔ بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو، ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ غالب نے یہ جو خط ہے وہ 1861 میں تحریر کیا ہے۔ تو چلیے چل کر اس خط کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں، اس کی مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غالب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں۔ عزیز طلباء، غالب کے جو یہ خط ہے وہ ان کے ایک عزیز ترین شاگرد کے نام ہے، جو ان کے سامنے پلے بڑھے ہیں اور ان کو بہت زیادہ عزیز بھی ہیں، اور عمر کے لحاظ سے بھی ان سے کافی کم یعنی کہ 16-17 سال چھوٹے تھے ان سے، تو اس وجہ سے بھی وہ ان کو ایسے لقب سے پکار رہے ہیں جو انتہائی عزیز اور محبت سے لبریز لقب ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ان کو جانے غالب سے جو ہے وہ خط کی شروعات کرتے ہیں
कहते हैं कि तुम तो समर नोरस हो। समर दरअसल किसे कहते हैं? समर कहते हैं फल को, और नोरस जो नया और ताजा फल होता है। तुम तो समर नोरस हो इस निहाल के, इस पौधे के, ठीक है, इस पौधे के तुम ताजा ताजा फल हो। किसे कह रहे हैं? अलाउद्दीन अलाई को, जिसने मेरी आंखों के सामने नशोनुमा पाई है। और मैं हुआ ख्वाह साया नशीं, हुआ ख्वाह यानी कि खैर ख्वाह, हमदर्द, साया नशीं, सरपरस्त हूँ, ठीक है, उसकी निगरानी करने वाला हूँ, इस निहाल का रहा हूँ, यानी कि इस पौधे का सरपरस्त, निगरानी करने वाला, खैर ख्वाह, हमदर्द रहा हूँ। क्यों कर तुम मुझको अजीज न होगे। रही ये दीद व दीद यानी कि देखने दिखाने की जो बात है, या दीदार की बात है, तो इसकी दो सूरतें हैं। वो कहते हैं कि अगर देखना दिखाना की बात है तो इसकी दो सूरतें हैं, तुम दिल्ली आओ या मैं लोहारो आऊँ। क्योंकि लोहारो जो है दरअसल अ, अ, गालिब का जो है वो आबाई गांव भी है, उनके ससुराल भी वहाँ था, तो तुम दिल्ली में आओ। लेकिन मौजूदा जो है वो दिल्ली में जो है उनका क़याम है, तो इस वजह से वो दिल्ली का हवाला दे रही हैं, दिल्ली में वो रहे हैं गालिब, तो उनको कह रहे हैं कि या तो तुम दिल्ली आ जाओ या मैं लोहारो आऊँ, क्योंकि अलाउद्दीन अलाई जो हैं वो लोहारो के जो हैं वो रहने वाले हैं। दरअसल अलाउद्दीन अलाउ जो हैं वो लोहारों के जो वालिय लोहारो थे, अमीनुद्दीन अहमद, उनके बेटे और जानशीन भी थे। तुम मजबूर, मैं माजूर, यानी कि तुम मजबूर हो, नहीं आ सकते दिल्ली, और मुझे भी उज़र है, मेरे भी उज़र है कि मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। खुद कहता हूँ कि मेरा उज़र ज़िन्हार मसमूँ ना हो। तो आगे कहते हैं कि मैं खुद कहता हूँ कि जो मेरा उज़र है, जो मेरा जो ये मैं बहाना कर रहा हूँ ना आने का, ज़िन्हार हरगिज़ मसमूँ ना सुना जाए। ठीक है, मेरा ये बहाना उस वक्त तक ये हरगिज़ ना सुना जाए जब तक कि ना समझ लो कि मैं कौन हूँ और माजरा क्या है। यानी कि वो जो ये उज़र पेश कर रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, तो वो कहते हैं कि इसके पीछे असल माजरा क्या है, वो भी सुन लो। आगे कहते हैं कि सुनो, आलम दो हैं, एक आलमी अरवा और दूसरा आलमी आबोगिल। यानी कि दो आलम हैं, एक आलम अरवा जहाँ पे हमारी रूहें क़याम करती हैं, और एक आलम आबोगिल, इस दुनिया को कहते हैं। आपको पता है पानी को कहा जाता है, और गिल जो है मिट्टी है, यानी कि मिट्टी और पानी से बना हुआ ये आलम, ये दुनिया। हाकिम इन दोनों आलमों का वो एक है, यानी कि अल्लाह ताला। हर चंद कायदा आम ये है कि आलम आबोगिल के मुजरिम आलम अरवा में सजा पाते हैं। कहते हैं कि आम कायदा रोज़े अव्वल से ही ये रहा है कि दुनिया में जो इंसान जिस तरह के अमाल करता है, उसकी अमाल की जो सज़ा है वो उसके मरने के बाद अरवा में उसको दी जाती है, यानी कि मरने के बाद वो उस सज़ा का मुस्तहिक होता है। लेकिन यूं भी हुआ है कि आलम अरवा के गुनाहगार को दुनिया में भेज कर सजा देते हैं। फिर कहते हैं कि जहाँ हमारी पहली रूहें जो हैं वो जमा होती हैं, जिनको दुनिया में आना होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब उनको सजा दी जाती है तो उनको दुनिया में भेज दिया जाता है। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया को एक कैद खाना कह रहे हैं, और खुद को एक मुजरिम, एक कैदी की हैसियत से तशबीह दे रहे हैं। चुनांचे में 8वीं रजब 1212 हिजरी में रूपकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। यहाँ पर वो अपनी तारीख पैदाइश बयान कर रहे हैं। रूपकारी के वास्ते यानी कि रूपकारी कहते हैं किसी मुकदमे में कोई पेशी हो, किसी का सामना किया जाए मुकदमे की पेशी के लिए, तो उस हवाले से कह रही हैं कि यहाँ भेजा गया, यानी कि कहाँ भेजा गया, इस दुनिया में आए हैं वो रजब 1212 हिजरी में, ठीक है, जिसे वो मुकदमे की पेशी के हवाले से उसको तशबीह दे रही हैं कि वो दुनिया में आए हैं, चुनांचा ऐसा लगता है कि वो किसी मुकदमे की पेशी के लिए यहाँ लाए गए हैं। 13 बरस हवालात में रहा। यहाँ हवालात से मुराद क्या है? जहाँ वो पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? आगरा में। तो वो आगरा को कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर 13 बरस रहा। आगरा में उनका क़याम जो था वो 13 बरस का था, क्योंकि वो आगरा में पैदा हुए हैं, और उसके बाद जब उनकी शादी हुई है तो वो कहाँ मुंतकिल चले गए थे? दिल्ली में उनका क़याम था। तो यहाँ वो आगरा से मुराद लेते हैं। तो कहते हैं कि 13 बरस में आगरा में रहा,
7 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवाम हब्स सादिर हुआ। अब ये हुक्म दवाम हब्स क्या है? इससे मुराद जो है वो उनकी शादी है, जो उनकी शादी हुई थी। वो बहुत कम उम्री में वो रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गए थे, तो लिहाजा उनकी शादी जो थी वो 1810 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर अगर वो देखते हैं कि 1225, ठीक है, 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवाम हब्स यानी कि हमेशा की जो कैद होती है, उम्र कैद जिसे कहते हैं ना, उम्र कैद जो है वो सादिर हुई। तो अब वो 1212 हिजरी में पैदा हो रही हैं और 1225 में जो है उनकी शादी हो गई। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी। बेड़ी से यहाँ वो किसकी मुराद लेते हैं? उनसे मुराद उनकी बीवी है, ठीक है, जिसका नाम उमराव बेगम था, जो नवाब इलाही बख्श खान की बेटी थी। तो एक इंतहाई कम उम्री में उनकी शादी हुई और बेड़ी को वो बीवी को वो बेड़ी के नाम से तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद को पहले ही कैदी की सूरत में पेश कर चुके हैं। हवालात को वो आगरा का रहने को वो हवालात से तशबीह देते हैं, और फिर उम्र कैद को वो शादी से तशबीह देते हैं। और इसी तरह जो बेड़ी यानी कि पाँव की जो जंजीर होती है, वो बीवी के साथ को उससे तशबीह दे रही हैं। और दिल्ली शहर को जिंदान मुकर्रर किया। जिंदान जेल खाना, कैद खाना, तो कहते हैं दिल्ली शहर में ही उनका कयाम रहा और मुझे इस जिंदान में डाल दिया। फिक्र नज़्म व नसर को मुशक्कत ठहराया, जैसे सजा जो एक सजा होती है, जब आप कैद बामुशक्कत जिसे कहते हैं कि कैद में भी डाला जाए और साथ ही साथ उसको मुशक्कत के लिए साथ काम भी करना पड़े, तो कहते हैं कैद में तो डाल दिया गया और साथ ही साथ जो नज़्म व नसर का जो काम था, जो फ़िक्र व नज़्म व नसर थी, जो उनका पेशा था, उसको उन्होंने मुशक्कत के नाम से तशबीह दी है। बरसों बाद जेल खाने से भागा, 3 बरस बिलाद शर्किया में फिरता रहा। बिलाद शर्किया क्या है? मशरकी जो इलाके थे भारत के, वहाँ वो जो है वो फिरते रहे, उस जेल खाने से भाग गए, यानी कि शादी के बाद जो है वो दिल्ली से निकलकर वो आसपास के मशरकी इलाकों में चले गए। बयानकार मुझे कलकत्ता से पकड़ लाए, आखिरकार मुझे कलकत्ता से पकड़ लाए और फिर इसी महबस में बिठा दिया, फिर इसी दिल्ली में, यानी कि इसी कैद खाने, महबस कहते हैं जेल को या कैद खाने को। जब देखा कि ये कैदी गुरेस्पा है, वो दो बेड़ियां और बढ़ा दी। जब देखा कि अब ये फिर भागने की सूची है इसको और फिर भागना चाहता है, तो उन्होंने 2 बेड़ियां और बढ़ा दी। अब ये 2 बेड़ियां क्या थी? ये इससे मुराद उनके जो भांजे थे, जो वफात पा चुके थे अपनी जवानी में ही, जिनका नाम आरिफ था। उनके भांजे आरिफ जवानी में वफात पाने के बाद जो उनके 2 बच्चे थे, उनके नाम बाकिर अली खान और हुसैन अली खान थे, और उनकी जो परवरिश की जो जिम्मेदारी थी वो गालिब के सुपुर्द की गई। गालिब ने उसकी जो है वो जिम्मेदारी उठाई उन 2 बच्चों को पालने की, परवरिश करने की। तो यहाँ 2 बेड़ियां और बढ़ा दी, इससे मुराद वो 2 बच्चे हैं जो उनके भांजे के बच्चे थे। पाँव बेड़ी से फिगार, पाँव जो है वो जंजीर से जख्मी, हाथ हथकड़ियों से जख्मदार, मुशक्कत मुकर्ररी और मुश्किल हो गई, यानी कि लाजमी वो मुशक्कत करनी है हर हाल में, और मुश्किल होती गई क्योंकि उम्र का भी तकाजा था और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। ताकत यक कलम ज़ाइल हो गई, यक कलम ज़ाइल हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, एकदम से तमाम की तमाम ख़त्म हो गई। 1 साल बेड़ी को ज़ाविये ज़िंदान में छोड़ माँ 2 हथकड़ियों के भागा। 1 साल जो है अपनी बीवी को जो है ज़ाविये ज़िंदान, यानी कि कैद खाने के गोशे में, कैद खाने के कोने में छोड़कर माँ दोनों हथकड़ियों के भागा, यानी कि उन दोनों बच्चों को लेकर वो वहाँ से फिर किसी और इलाकों में चले गए, जैसे कि मीरठ, मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। ये तमाम जो है इलाके रियासतें हैं इंडिया की, हिंदुस्तान की। कुछ दिन कम 2 महीने वहाँ रहा था कि फिर पकड़ाया। अब अहद किया कि फिर ना भागूंगा। भागूंगा क्या, भागने की ताकत भी तो ना रही। और अब कहते हैं कि अब ये मैंने इरादा कर लिया है कि अब जो है वहाँ से कभी नहीं भागूंगा, यानी कि दिल्ली में ही रिहाइश है, क्योंकि फ़िक्र रोज़गार और फ़िक्र माश के सिलसिले में भी और उनके हालात भी ऐसे थे कि वो एक शाहाना अमीराना ज़िंदगी गुजारने के आदी थे, तो इस वजह से उनके जो हालात थे वो दिन ब दिन जो हैं वो इंतहाई
नाजुक हालत इख्तियार कर रहे थे, उनको गुज़र बसर के लिए इंतहाई मुश्किल दरपेश होती थी और वो एक महदूद वजीफ़े में ही अपना गुज़ारा किया करते थे, जो कि वहाँ के उस वक़्त के हुक्मरान की जानिब से उनको मिला करता था। हुक्म रिहाई देखिए कब सादिर हो, यहाँ हुक्म रिहाई से मुराद मौत का परवाना है, यानी कि मौत की जो हुक्म है वो न जाने कब आ जाए, कब जो है वो ज़िंदगी जो है वो रिहाई हासिल कर ले। एक ज़यीफ़ सा एहतमाल है, ज़यीफ़ सा एहतमाल कमज़ोर सा अंदाज़ा सा है कि इसी माह ज़िलहज्जा 1277 हिजरी में छूट जाऊँ, यानी कि हो सकता है कि इसी साल जो है वो मौत का जो परवाना है वो रूह कब्ज़ कर ले और ये जो कैद खाना है, जो जिस दुनिया को उन्होंने कैद खाने से तशबीह दी है, इस कैद खाने से रिहाई हासिल कर लूँ। बहर तकदीर बाद रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं भी बाद निजात सीधा आलम अरवा को चला जाऊँगा। कहते हैं कि इतनी मुद्दतों की कैद खाने और इतनी मुद्दत की जो कैद-ओ-बंद की सऊबतों के बाद इंसान सीधा अपने घर ही जाना पसंद करता है, वहीं क़याम करना पसंद करता है और मेरे लिए ये दुनिया भी एक कैद बामुशक्कत है, जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ से रिहाई मिलती है, यानी कि मौत आती है, तो मैं भी सीधा आलम अरवाह को चला जाऊँगा और वही जो है मेरा दायमी घर है। गालिब ने ये ख़त जून 1861 को अलाउद्दीन अलाई के नाम लिखा है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि इस खतूत में आपने न सिर्फ गालिब के हालाती ज़िंदगी को भी समझा होगा, बल्कि उस वक़्त के हालात जो थे गदर के, उससे उसको समझने में भी आपको कभी काफ़ी सहूलत हो गई होगी। इसके अलावा भी आप अपने घर में 2 से 3 मरतबा इसका मुताला जारी रखेंगे, ताकि मुश्किल अल्फाज तक रसाई हासिल करने में आपको आसानी हो और इसके साथ-साथ लुग़त का इस्तेमाल भी जारी रखें। शुक्रिया।